Good morning, students. Welcome back to your SST class. Today, I'll teach you social and political life. I hope you all have enjoyed your vacations, and during this vacation, you all have studied a little bit and have also done your assignments, and you have watched all the previous videos. We are going to start new chapter in social and political life as we have already studied the previous two chapter. The third chapter is the state government. In this chapter, we are going to study in detail about the state government, and the topics here we are going to study are about the state legislature, composition of a state legislature, what are the qualifications which is required for the membership of a state legislature, what is the tenure of a state legislature, what is the function of a state legislature. Then we are going to study about the speaker, how laws are made, and the several other topics like about state executive and about the governor, the council of ministers, the advocate general, administration of union territories, etc. Okay, so let us start the chapter with the first topic. So, as we know that in our country, India, the government functions at various levels: village level, state level, and central level. So, basically, our country follows a federal form of government where our country is divided into different states. There is one government at center, and each state has a separate government. The states are further divided into districts where local governments function. There are 28 states and 9 union territories in India, including the National Capital Region of Delhi. So here we are going to study about the structure and functions of a state government. Okay, जैसा कि हम जानते हैं इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट लेवल पे वर्क करती है, विलेज लेवल, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे। तो हमारी कंट्री इंडिया एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करती है, जहाँ पे कंट्री जो है वो बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइडेड है। एक गवर्नमेंट होती है सेंटर पे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम बोलते हैं, और दूसरी होती है स्टेट्स में सेपरेट गवर्नमेंट होती है जिन्हें हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। स्टेट्स जो है वो फर्दर डिवाइडेड होता है डिस्ट्रिक्ट्स में, जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट फंक्शन करती है। अभी मतलब देयर आर 28 स्टेट्स, हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं इंडिया में, जिसमें नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली भी इंक्लूडेड है। सो हम अब आगे देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है स्टेट गवर्नमेंट का वो किस तरह से काम करता है। द स्टेट लेजिस्लेचर. The state government has three organs: the legislature, the executive, and the judiciary. The Constitution of India, it clearly defines the structures, powers, and functions of each organ of the state government. When elections are held in a state, people elect representatives who basically form the state legislative assembly or the Vidhan Sabha. Basically, it is the main body that makes laws in a state. Okay. नाउ कमिंग बैक, स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं: द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी कंट्री का, इंडिया का, उसमें क्लियरली जो है डिफाइन किया गया है जो भी स्ट्रक्चर, पावर और फंक्शन है स्टेट गवर्नमेंट के हर ऑर्गन के, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन है। जब भी इलेक्शंस होते हैं किसी स्टेट में, तो जो वहाँ के स्टेट के लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं, जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर यूँ बोले विधानसभा का फॉर्मेशन करते हैं। ये मेन बॉडी होती है जो कि लॉज बनाती है एक पर्टिकुलर स्टेट में। In some states of India, apart from the Vidhan Sabha, there is another house of legislature which is called Vidhan Parishad. States which have only one legislative body, it is called unicameral, and those states which are having both the Vidhan Sabha and Vidhan Parishad are called bicameral. Okay. Maharashtra, Karnataka, Bihar, Uttar Pradesh and Andhra Pradesh, they have bicameral legislatures. Okay. ना अगर हम बात करें कुछ स्टेट्स हैं इंडिया के जो कि मतलब अगर हम विधानसभा के अलावा एक अनदर हाउस होता है लेजिस्लेचर का जिसको हम विधान परिषद बोलते हैं, वो स्टेट्स जिनके अंदर सिर्फ एक ही लेजिस्लेटिव बॉडी होती है उन्हें हम यूनिकैमरल बोलते हैं। और कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है वो दो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ होती हैं, मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है, उन्हें हम बाईकैमरल बोलते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में बाईकैमरल लेजिस्लेचर्स हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा. The members of the legislative assembly, they are elected directly by the people through elections. The number of members in the legislative assemblies of each state, it varies. It depends upon the population of the state. Each state is divided into areas called constituencies, and from each constituency, one representative is elected. The assembly should not be less than 60 and the maximum number of members should not be more than 500.
अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें स्टेट लेजिस्लेचर की, तो उसमें सबसे पहला चीज़ जो आती है वो होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि हमारी विधानसभा। जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो डायरेक्टली जो है इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा इलेक्शंस के थ्रू। एंड जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के में, वो हर स्टेट पे वैरी करता है। वो डिपेंड करता है कि इस पर्टिकुलर स्टेट की पॉपुलेशन क्या है। हर स्टेट जो है वो डिवाइड होता है कुछ एरियाज़ में, जो कि कॉन्स्टिट्यूंसीज़ कहलाती हैं, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन होता है, ठीक है, वो इलेक्ट किया जाता है। जो मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर जो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो जो है 60 से कम नहीं होने चाहिए, और जो मैक्सिमम नंबर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो 500 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे आप एक इमेज देखिए, यहाँ पे एक इमेज दी है, एक स्टेट लेजिस्लेचर कैसा दिखता है उसकी एक इमेज दी है, यू कैन क्लियरली सी इन द picture. After elections, the party gaining majority of votes forms the government, while other parties form the opposition. Sometimes coalition governments are also formed where no single party wins the required number of seats and two or more parties come together to form the government. Sometimes members of the Anglo-Indian community are nominated to the Legislative Assembly, and if it does not have enough representation in the assembly, a member of a state legislative assembly is called an MLA, or you can say it is abbreviation. MLA is an abbreviation of member of legislative assembly. जो जब इलेक्शंस हो जाते हैं, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा जो है वोट मिले होते हैं, वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, और जो अदर पार्टीज़ होती है वो अपोजिशन का फॉर्मेशन करती हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोalition गवर्नमेंट भी फॉर्म होती है। कोalition गवर्नमेंट कब फॉर्म होती है? जब कोई भी सिंगल पार्टी को जो है मेजॉरिटी नंबर ऑफ सीट नहीं मिलती है, तो उस टाइम पे दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ एक साथ आ जाती हैं और गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती हैं। कभी कभी क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, वो भी नॉमिनेट किए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, और अगर इनफ रिप्रेजेंटेशन नहीं होता असेंबली में उस टाइम पे, ठीक है। जो मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन्हें हम MLA बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। द लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद। The members of the state legislative council or the Vidhan Parishad are not directly elected by the people but are elected in the following manner. First point is 1/3 members are elected by the legislative assembly. Second, 1/3 members are elected by the members of the local bodies. Third one is 1/12 members are elected by teachers who have taught in secondary schools in the state, and another 1/12 by graduates from universities in India who have graduated with at least 3 years standing. Fourth one is 1/6 members distinguished in the field of art, literature and science are nominated by the governor of the state. The member of a state legislative council is called MLC, which is an abbreviation of member of legislative council. The total number of member in a Vidhan Parishad, it should be 1/3 of the total number of members in Vidhan Sabha. A Vidhan Parishad cannot have less than 40 members. लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हम विधान परिषद भी बोलते हैं, जो मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के या फिर विधानसभा के, ये डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए जाते लोगों के थ्रू, बट इनका इलेक्शन का एक डिफरेंट प्रोसेस होता है। 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो है जो 1/3 मेंबर्स होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली खुद उन्हें इलेक्ट करती है, और जो दूसरे 1/3 मेंबर्स होते हैं उन्हें जो है जो मेंबर होते हैं लोकल बॉडीज़ के, वो इलेक्ट करते हैं। 1/12 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं टीचर्स के थ्रू, जो कि सेकेंडरी स्कूल्स में उन्होंने पढ़ाया हुआ है स्टेट में, और 1/12 जो है वो ग्रेजुएट्स होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से इंडिया की, और जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, या फिर एटलीस्ट जो है 3 इयर्स की स्टैंडिंग है उनकी। अनदर प्रोसीजर क्या है कि 1/6 मेंबर्स जो होते हैं इसके, वो डिस्टिंग्विश्ड होते हैं फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर और साइंस के, और ये जो है जो गवर्नर होते हैं उनके थ्रू नॉमिनेट किए जाते हैं। जो मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उन्हें हम MLC बोलते हैं या फिर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर हैं विधान परिषद के, वो 1/3 होते हैं टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ विधानसभा, ठीक है। विधान परिषद के जो मेंबर्स होते हैं वो लेस देन 40 मेंबर्स, 40 से कम नहीं होने चाहिए, उससे ज़्यादा ही होने चाहिए, तभी आपका विधान परिषद बन पाएगा। ओके। क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड for the membership of state legislatures. To become a member of the Legislative Assembly or the Legislative Council, a person should have the following qualifications. First, she must be a citizen of India. Second, she must be at least 25 years of age for getting elected to the Vidhan Sabha and 30 years for the Vidhan Parishad.
he she must be registered voter in that state. He she must not hold any office of profit under the government. तो अगर हम बात करें क्वालिफ़िकेशन जो कि रिक्वायर्ड होती है मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, चाहे वो आप लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए हो या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, सबसे पहली क्वालिफ़िकेशन तो ये होती है कि ही और शी को जो है जो भी है कैंडिडेट वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। दूसरा ये होता है कि अगर आप विधानसभा के इलेक्शंस के लिए जा रहे हैं तो उस टाइम पे आपकी एज जो है एटलीस्ट 25 ईयर्स होनी चाहिए, और अगर विधान परिषद के लिए तो आपकी एज 30 ईयर्स की होनी चाहिए। जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसको एक रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए उस स्टेट में। जो भी कैंडिडेट है वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट होल्ड नहीं करे होना चाहिए। ओके, The last qualification is he she must not be mentally unsound or have been proclaimed a criminal by the laws of the state। जो हमारी लास्ट क्वालिफिकेशन है मेंबरशिप के लिए स्टेट लेजिस्लेचर की, वो ये है कि जो ही और शी है वो मेंटली जो है अनसाउंड नहीं होना चाहिए, और ना ही वो किसी भी स्टेट के लॉज के थ्रू जो है उसके ऊपर कोई क्रिमिनल एक्ट लगा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी 5 क्वालिफिकेशन थी जो कि रिक्वायर्ड थी मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। Tenure of the state legislatures. The Vidhan Sabha is elected for a period of 5 years. However, under certain special circumstances, the governor might dissolve the assembly before 5 years. The Vidhan Parishad is a permanent house and it can never be dissolved. Members are elected for a period of 6 years. 1/3 of the members retire after every 2 years and only these positions are filled through new elections. जो टेन्योर होता है स्टेट लेजिस्लेचर का वो ये है कि जो विधानसभा के जो मेंबर्स हैं वो लोग इलेक्ट किए जाते हैं 5 इयर्स के ड्यूरेशन के लिए। बट कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि कुछ सर्टन स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, तो उस टाइम पे गवर्नर के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो डिसॉल्व कर सकता है असेंबली को 5 साल के पहले ही। विधान परिषद एक परमानेंट हाउस होता है जो कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जाता, और जो मेंबर्स होते हैं मतलब जो मेंबर्स होते हैं विधान परिषद के वो इलेक्ट किए जाते हैं 6 साल के लिए, और उसमें से 1/3 मेंबर जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल पे, और इन्हीं पोजीशंस को रिफिल किया जाता है न्यू इलेक्शंस के थ्रू। That's it for today's class. Thank you.